ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण डियर वैष्णवास, धन्यवाद प्रणाम। तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी भागवतम की इस चर्चा में ऑफ वासुदेव वसुदेव देवकी नंदनाय unto the son of Devaki cha and Nanda Gopa, Nanda and the cowherd man, Kumaraya unto their son, Govindaya unto the personality of Godhead who enlevens the cows and the senses. Namaha, respectful obeisances. Namaha, obeisances. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord, who has become the son of Vasudev, the pleasure of Devaki, the boy of Nanda, and the other cowherd man of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. Purport. The Lord, being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends to the earth as He is, in order to show His special mercy upon His unalloyed devotees, and to diminish the upsurges of the demoniac persons. Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations, because in this particular incarnation he is more approachable. In the Rama incarnation, he remained a king's son from his very childhood. But in the incarnation of Krishna, although he was the son of a king, he at once left the shelter of his real father and mother, King Vasudeva and Queen Devaki,
just after his appearance and went to the lap of Yashodamai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Vrajbhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Rama. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudev and the family. Had he not become the son of Vasudev and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew, and thus address Krishna in parental affection. But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all other pastimes. There is no parallel to his childhood pastimes as exhibited at Vrajbhumi, which are replicas of his eternal affairs in the original Krishna Loka, described as Chintamani Dham in the Brahma Samhita. Lord Sri Krishna descended himself at Vrajbhumi with all his transcendental encourage and paraphernalia, and specifically the cowherd girls who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. His pastimes with the Nand and Yashoda, and his pastimes with the cowherd man, and especially with the cowherd boys and the cows, have caused him to be known as Govinda. Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmanas and the cows, indicating thereby that human prosperity depends on more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. So this is one of the ultimate shloka from Srimad Bhagavatam recited by Queen Kunti. तो हम ये श्लोक को प्रतिदिन व्हेन वी डू अवर मंगलाचरण उसके बाद हम प्रतिदिन इस श्लोक का रिसाइटेशन करते हैं। और यही श्लोक जो है ये कुंती महारानी का है। कुंती महारानी ने ही ये श्लोक बोला है, बहुत अद्भुत श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही हैं? लेट मी देयर फोर offer my respectful obeisances unto the Lord who has become the son of Vasudev। अब बहुत स्पेसिफाई कर रही है कुंती महारानी, वसुदेव जी के पुत्र हैं। द प्लेजर ऑफ देवकी, देवकी माता के आनंद के धन है। द बॉय ऑफ नंद एंड द अदर कावर्ड मैन ऑफ वृंदावन, नंद बाबा के पुत्र, हाँ हाँ, और जो बाकी के जो कावर्ड मैन है वृंदावन के, उनके पुत्र और मित्र भी हैं। जो भी वात्सल्य भाव में उन सभी के पुत्र हैं कृष्ण। एंड द एनलाइवनर ऑफ द काउस एंड द सेंसेस, जो एनलाइवन करते हैं काउस और सेंसेस को, काऊ को आनंद प्रदान करते हैं और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं गोविंद। हाँ, उनको प्रणाम करती हूं मैं, कुंती महारानी कह रही है। The Lord being thus unapproachable by any material assets, out of unbounded and causeless mercy, descends to the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurge of the demoniac persons। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लॉर्ड प्रभुपाद कह रहे हैं कि द लॉर्ड बीइंग thus unapproachable by any material assets, out of unbound and causeless mercy descend into the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurge of the demoniac person। तो भगवान को कोई भी मटेरियल एसेट्स के द्वारा हम अप्रोच नहीं कर सकते। मटेरियल एसेट्स में क्या हो सकता है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रहवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टता।
तो ये 8 प्रकृति से निर्मित कुछ भी तत्व और 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये सब प्रकृति है इस संसार में। इनमें से किसी भी तरीके से हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। देयर इज नो वे वी कैन अप्रोच द लॉर्ड। भगवान तो अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा ही, हाँ, अपने भक्तों के हृदय में प्रविष्ट करते हैं। टू डिमिनिश द अपसर्ज ऑफ द, हाँ, क्या करते हैं, टू डिमिनिश द, और फिर पृथ्वी पर क्यों प्रकट होते हैं, क्योंकि स्वेच्छा से आते हैं। टू डिमिनिश, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations because in this particular incarnation he is more approachable. भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है उसको कुंती महारानी ज्यादा अप्रिशिएट कर रही, क्योंकि इस स्वरूप में भगवान ज्यादा अप्रोचेबल है। इन द रामा इनकारनेशन ही रिमेन अ किंग्स सन फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। भगवान का जो राम इनकारनेशन है उसमें तो वो क्या रहे, इन 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 द रामा इनकारनेशन ही रिमेन द किंग्स सन फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। वो अपने राजा के पुत्र रहे चाइल्डहुड से ही, ठीक है। बट इन द इनकारनेशन कृष्णा ही वॉज द सन ऑफ, ऑल्दो ही वॉज द सन ऑफ किंग, ही एट वंस लेफ्ट द शेल्टर ऑफ हिज रियल फादर एंड मदर King Vasudeva and Queen Devaki just after his appearance and went to the lap of Yashodamai to play the part of ordinary cowherd boy in the blessed Vrajbhumi, which is very sanctified because of his childhood pastime. तो जब भगवान राम के रूप में अवतरित हुए थे तो वहां तो भगवान ने क्या किया, भगवान वहां तो, हाँ, राजा के पुत्र ही रहे। परंतु जब वो व्रजभूमि में प्रकट हुए, जब वो ब्रजभूमि में आए, जब वो मथुरा में प्रकट हुए और ब्रजभूमि में आए, तो मथुरा में अपने राजा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने राजा पिता का त्याग करके वृंदावन में आए यशोदा माई की गोद में, ताकि वो ब्रजभूमि में दिव्य आनंद का वर्धन कर सकें। Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Ram. Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Ram. He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudeva and the family. हाँ, भगवान राम से ज्यादा दयालु भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु गौरांग है। Had he not become the son of Vasudeva and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew and thus address Krishna in parental affection. यदि वे नहीं होते, had he not become the son of Vasudeva, हाँ, अगर वो वसुदेव के पुत्र नहीं होती तो कुंती महारानी उनको, हाँ, अपने भतीजे के रूप में नहीं समझ पाती, और फिर उनका उनका जो वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति वो नहीं आ पाता। But Nanda and Yashoda are more fortunate because they could relish the Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all other pastimes. और जो ये नंद और यशोदा है वो बहुत ही फॉर्चुनेट है, बिकॉज दे कुड relish द लॉर्ड्स चाइल्डहुड pastimes, क्योंकि उन्होंने भगवान की दिव्य आनंदमय बाल्य लीलाओं का दर्शन और आनंद प्राप्त किया। हाँ, और वो जो दिव्य बाल्य लीलाएं हैं वो समस्त अदर लीलाओं से ज्यादा आनंदित आकर्षित करने वाली हैं। देयर इज नो पैरेलल टू हिज चाइल्डहुड पास टाइम्स एज एग्जिबिटेड एट व्रजभूमि। और जो व्रजभूमि में उन्होंने सुंदर चाइल्डहुड पास टाइम्स एग्जिबिट किए उसका कोई पैरेलल नहीं है, which are replicas of his eternal affairs in original Krishna Loka described as Chintamani Dham in the Brahma Samhita. Which are replicas, वो replicas हैं, हाँ, कहाँ, जो कृष्ण लोक में, जो गोलोक वृंदावन में जो भगवान नित्य लीला करते हैं उसका रेप्लिका इस ब्रजभूमि में भगवान क्रिएट करते हैं, जो कि चिंतामणि धाम है, ब्रह्म संहिता में बताया गया। लॉर्ड श्री कृष्णा डिसेंडेड हिमसेल्फ एट व्रजभूमि विद ऑल हिज ट्रांसेंडेंटल एंटोरेज एंड पैराफर्नेलिया। तो भगवान अपने समस्त पार्षद और अपने समस्त पैराफर्नेलिया, समस्त एंटोरेज को लेकर प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु therefore confirmed that no one is as fortunate as the residents of Vrajbhumi, specifically the cowherd girls who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord.
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कंफर्म किया कि कोई भी इतना फॉर्चुनेट नहीं है जो कि व्रजभूमि में जो व्यक्ति है उससे ज्यादा फॉर्चुनेट कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान की संतुष्टि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। His pastimes and Nand, his pastimes with Nand and Yashoda, and his pastimes with the cowherd men, and especially with the cowherd boys, and the cows have caused him to be known as Govinda. जो भी उन्होंने लीलाएं की हैं नंद बाबा यशोदा मैया के साथ, गायों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, इसलिए उनका नाम हुआ है गोविंद। Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmanas and the cows. Lord Krishna as Govinda is more inclined to the Brahmanas and the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. भगवान कहीं पे भी संतुष्ट नहीं होते जहां पर काउ प्रोटेक्शन और ब्राह्मणिकल कल्चर नहीं होता। तो पॉइंट क्या है? कि जो कुंती महारानी है, कुंती महारानी क्या कह रही हैं? हम्म, कुंती महारानी कह रही हैं, हाँ, कि मैं उन गोविंद को प्रणाम करती हूँ। पहले तो परम सत्य कर रही हैं, और अब गोविंद गोविंद कर रही हैं। हाँ। क्यों हम ऐसे? वो हम सभी के लिए कर रही हैं। कुंती महारानी इज वेल अवेयर एंड शी हैज अ वात्सल्य अफेक्शन, एंड शी इज, हाँ, भगवान की नित्य पार्षद है, मोस्ट एडवांस डिवोटी है। हाँ। परंतु वो क्या कर रही हैं? वो भगवान की स्तुति कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि आप ग्लोरियस हैं। हाँ, और भगवान की मोस्ट ग्लोरी क्या है? हाँ, कि भगवान ने व्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी सुंदर लीलाएं प्रदर्शित की हैं, प्रकाशित की। ये ग्लोरीज हैं भगवान की, और यही बात कुंती महारानी कह रही है इस श्लोक में। हम्म, कि भगवान आप जो नित्य लीला करते हैं ब्रजभूमि वृंदावन धाम में, वो अद्भुत है, ऐसी लीलाएं अद्भुत है। तो इतना अद्भुत ये श्लोक है कुंती महारानी के द्वारा प्रदत्त, और उसमें शिल प्रपात कह रहे हैं कि जहां पर ब्राह्मणिकल, हाँ, कल्चर और काउ प्रोटेक्शन नहीं होता, तो भगवान कहाँ वहां पर कभी संतुष्ट नहीं होते। वहां पर कभी संतुष्ट नहीं होंगे भगवान। नेक्स्ट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल श्लोक। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, नमः, all respectful obeisances, Pankajanaಭಾಯ, unto the Lord who has specific depression resembling a lotus flower in the center of his abdomen. Namaha, obeisances. Pankajamaline, one who is always decorated with a garland of lotus flower. Namaha, obeisances. Pankajanetraya, one whose glance is as cooling as lotus flower. Namahate, respectful obeisances unto you. Pankajangraye, unto you, the sole of whose feet are engraved with lotus flowers, and who are therefore said to possess lotus feet. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. My respectful obeisances are unto you, O Lord,
whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as lotus, and whose feet are engraved with lotuses. तो यहाँ पर कुंती महारानी क्या कह रही हैं? माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस आर अनटू यू ओ लॉर्ड। हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। Whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower। जो एब्डोमेन मतलब जो जिनका नाभि है, वो कैसी है? कमल के पुष्प के समान है नाभि। Who are always decorated with the garlands of lotus flower। और भगवान के गले में कैसी माला है? गार्लैंड ऑफ लोटस फ्लावर्स है। Whose glance is as cool as the lotus। और जिनकी ग्लांस जो दृष्टि है वो as cool as lotus है। And whose feet are engraved with lotuses। और जिनके चरण कमल कैसे हैं? चरण कमल के समान है। और उनके चरणों में क्या है? एनग्रेव विथ लोटसेस। एनग्रेव भी हैं, कमल के जो चिन्ह है वो एनग्रेव भी हैं। चरण कमल पे कमल। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, here are some of the specific symbolic marks on the spiritual body of the personality of Godhead which distinguish his body from the bodies of all others। Here are some of the specific symbolic marks। यहाँ पर कुछ specific symbolic marks हैं on the spiritual body of the personality of Godhead which distinguish his body from the bodies of all others। और ये जो चिन्ह है भगवान के शरीर पे, ये केवल भगवान के शरीर पे ही है और कहीं नहीं है, और किसी के शरीर पे नहीं होते। दे आर स्पेशल फीचर्स ऑफ द बॉडी ऑफ द लॉर्ड। और ये भगवान के स्पेशल फीचर्स। द लॉर्ड में अपियर एज वन ऑफ अस। भगवान अपियर हो सकते हैं हमारे जैसे कोई एक, बट ही इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट बाय हिज स्पेसिफिक बॉडीली फीचर्स। परंतु वो डिस्टिंक्ट हैं उनके स्पेशल बॉडीली फीचर्स। वैसे भी उनकी बॉडी का शरीर दिव्य है, परंतु वैसे भी वो डिस्टिंक्ट है। श्रीमती कुंती claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman। और कुंती महारानी कह रही हैं कि मैं तो एक स्त्री हूं। बहुत ही हम्बल पोजीशन स्वीकार कर रही हैं कुंती महारानी। तो जब बड़े बड़े योगी, ऋषि, ध्यानी, बड़े बड़े लोग भगवान को नहीं दर्शन कर पाते, तो मैं तो एक अबला सी स्त्री हूं, मैं कैसे भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगी? लेकिन भगवान ये ज्ञान, योग, तपस्या, दान, इनसे नहीं जीते जाते हैं। भगवान केवल एक तत्व से जीते जाते हैं, प्रेममयी सेवा, और कोई तत्व नहीं। दिस इज क्लेम्ड बिकॉज विमेन, Shudras, the liberal class, and the Dvijabandhus or the wretched descendants of the hierarchy classes are unfit by intelligence to understand transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, form, etc। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि स्त्रिया, वैश्या, शूद्रा तथा द्विजबंधुस जो आते हैं, दिस पीपल आर अनक्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये सब समझने की उनकी कैपेसिटी नहीं है ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। Such person, although they are unfit to enter into spiritual affairs of the Lord, can see him as Archa Vigraha, who descends to the material world just to distribute the favors to the fallen souls, including the above mentioned women, Shudras, Dvijabandhus। तो भगवान क्या करते हैं? ऐसे जो क्वालिफाइड नहीं है भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं। स्त्रिया, वैश्या, शूद्रास एंड द्विजबंधुस, यानी हम सब कलयुग के जीव, हम सभी जीव जो कलयुग के हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन कौन कर सकता है? ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो होते हैं, वो दर्शन कर सकते हैं भगवान के। चिन्मय दर्शन, मनोमय दर्शन और प्राकृत दर्शन, ये 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। परंतु तीनों दर्शन एक ही हैं, इन द सेंस भगवान के ही दर्शन हैं। उसमें ग्रेडेशन अलग अलग हो सकता है, क्वालिटी ऑफ दर्शन कैन बी एनहांस्ड, बट
तीनों दर्शन भगवान के ही है। एसेंशियली द पॉइंट इज दिस। ऐसा नहीं है कि जो प्राकृत दर्शन कर रहा है वो भगवान के दर्शन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कोई सोचता है कि ये व्यक्ति तो विग्रह के दर्शन कर रहा है, ये तो मूर्ख है, मूर्ख वो है जो ऐसा बोल रहा है। क्योंकि विग्रह तो भगवान ही है, स्वयं कृष्ण व्रजेंद्र नंदन है। हम्म? स्वयं व्रजेंद्र नंदन है ना। तो विग्रह तो स्वयं भगवान है, कोई अंतर नहीं है। और मनोमय दर्शन कौन करता है? जो ज्ञानी और योगी हैं वो मनोमय दर्शन करते हैं, क्योंकि उनका सटल बॉडी में उनका रियाम है। और चिन्मय दर्शन कौन करता है? चिन्मय दर्शन करते हैं भक्त, जो ट्रांसेंडेंटल आह्लादनी शक्ति के रियाम में रहते हैं, वो चिन्मय दर्शन करते हैं। वो चिन्मय दर्शन कर सकते हैं, भक्त चिन्मय दर्शन कर सकते हैं। ज्ञानी और योगी, हाँ, ये मनोमय दर्शन तक कर सकते हैं। हाँ। और जो प्राकृत जीव है, जो इस समाज, पर्टिकुलरली इस कलयुग में, स्त्रिया वैश्य शूद्र और द्विजबंधु सभी, बेसिकली इस कलयुग के सभी सजीव, वो प्राकृत दर्शन कर सकते हैं, प्राकृत दर्शन कर सकते हैं। परंतु तीनों दर्शन एक ही हैं। तीनों दर्शन एक ही दर्शन, तीनों दर्शन भगवान के ही हैं, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है तीनों दर्शन में। हाँ। कोई मन में दर्शन कर रहा है, कोई चिन्मय दर्शन कर रहा है, कोई प्राकृत दर्शन कर रहा है, पर तीनों सेम दर्शन कर रहे हैं, तीनों भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। ये है अंतर, ये अंतर है। हम्म, तीनों भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। परंतु इस संसार में, और ये किन के लिए भगवान विशेष रूप से अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं? भगवान विशेष रूप से अर्चा विग्रह के रूप में उन जीवात्माओं के लिए प्रकट होते हैं जो, उन जीवात्माओं के लिए प्रकट होते हैं जो ऐसे बद्ध हैं, और कलयुग में तो विशेषकर। तो भगवान की देखिए कितने दयालु हैं कि अगर आप बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ में हो, ग्रॉसली एनग्रॉस्ड हो, तो आपके लिए मैं विग्रह रूप में आ जाऊंगा। अगर आप अगर आप मन में दर्शन करना चाहते हो, तो मैं आपके हृदय में परमात्मा, सटल बॉडी में दर्शन करना चाहता हूँ, तो मैं आपके हृदय में परमात्मा के रूप में आ जाऊंगा। हम्म? और विग्रहों के दर्शन भी आप कर सकते हैं, मनोमय दर्शन। परंतु यदि आप मेरे प्रेममय भक्त हो तो आप मेरे चिन्मय दर्शन कर सकते हो। ऐसा भगवान कभी भी, हाँ, कभी भी भक्त से दूर नहीं है, जीव से दूर नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते, तत्व को समझेगा, तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं नाम रूप में आऊंगा। नाम रूप में तुम कानों के माध्यम से मेरा दर्शन करोगे। आप नहीं भी चाहोगे तो हरिनाम संकीर्तन के द्वारा इस पूरे संसार को मेरे भक्त आप्लावित कर देंगे। तो तुम्हें मेरा दर्शन करना होगा नाम के रूप में। मेरे भक्तों के रूप में मैं प्रकट होऊंगा तो तुम्हें मेरा दर्शन करना होगा। मेरे मंदिर के रूप में मैं प्रकट होऊंगा तो तुम्हें मेरा दर्शन करना होगा। मेरी कथाओं के रूप में मेरा दर्शन करना होगा। हम्म, समस्त दर्शन आपको करने होंगे, क्योंकि आप मेरे, हाँ, अहम बीज प्रदः पिता, मैं पिता हूं तुम्हारा। तुम मेरे बिगर नहीं रह सकते, और मैं भी तुम्हारे बिगर नहीं रह सकता। मैं पिता हूं तुम्हारा, भगवान कह रहे हैं। तो जीव के शाश्वत पिता तो भगवान है। हाँ, और हम इस संसार में बहुत सारे माता पिता को, बहुत सारे माता पिताओं को स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान वास्तविक माता पिता हैं। Such persons, although they are unfit to enter into spiritual affairs of the Lord, can see him as the Archa Vigraha who descends to the material world just to distribute favors to the fallen souls, including the above mentioned women, Shudras, and Dvijabandhus. Women, Shudras, and Dvijabandhus.
Because such fallen souls cannot see anything beyond the matter, the Lord condescends to enter into each and every one of the innumerable universes as the Garbhodakshaya Vishnu and grows a lotus stem from the lotus-like depression in the center of his transcendental abdomen. And thus Brahma, the living being in the universe, is born. तो भगवान तो इस संसार में प्रकट होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और वहां से उनके नाभि कमल से जो लोटस स्प्राउट होता है उस पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं. Therefore the Lord is known as पंकज नाभि, क्योंकि वो जो भगवान की नाभि कमल है, वो नाभि जो है वो कमल के सदृश है, तो पंकज नाभि कहा जाता है. The Pankaj Nabi Lord accepts the Archa Vigraha, his transcendental form, in different elements. हाँ हाँ, अर्चा विग्रह को, हाँ, the Pankaj Nabi Lord accepts the Archa Vigraha in different elements, namely a form within the mind. अर्चा विग्रह आप मन में दर्शन कर सकते हैं. A form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, a form drawn on a sand, etc. हाँ, तो अलग अलग रूप में भगवान प्रकट हो सकते हैं. All such form of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers, and there should be soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of the non-devotees always engaged in the material wranglings. क्या भगवान की दया है, देखिए इस कलयुग में जगह जगह पर मंदिर, जगह जगह पर हरिनाम संकीर्तन, जगह जगह पर कृष्ण कथा, जगह जगह पर भक्त, सब जगह पर भगवान के भक्त संसार में कृपा वितरित कर रहे हैं. द मेडिटेटर्स वर्शिप अ फॉर्म विद इन द माइंड, जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो मन में दर्शन करते हैं. Therefore, the Lord is merciful even to the women, Shudras and Dvijabandhus, provided they agree to visit the temple of the worship in different forms and made for them. तो भगवान दयालु हैं, वो प्रकट होते हैं. Such temple visitors are not idolaters. ये मूर्ख है जो बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा है. मूर्ति पूजा नहीं है. Krishna himself has appeared as विग्रह, as alleged by some man with a poor fund of knowledge. मूर्ख लोग हैं ये लोग. All the great acharyas established such temples of worship in all places just to favor the less intelligent. One should not pose himself as transcending the stage of temple worship while one is actually in the category of Shudras and the women or less. किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अब हमको मंदिर की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमने तो ट्रांसेंड कर दिया है. हाँ, while one is actually in the category of Shudras and women or less. One should begin to see the Lord from his lotus feet. भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए भी प्रभुपाद बता रहे हैं. तो हमको अपने आप को हमेशा कनिष्ठ समझना चाहिए. हमें मंदिर चाहिए हमेशा. Gradually rising to thighs, waist, chest and face. Gradually rising, चरण कमल से दर्शन करते हुए thighs, फिर नाभि कमल, फिर chest, और फिर face के दर्शन करना चाहिए. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. किसी को भी भगवान के सीधे फेस को नहीं देखना चाहिए विदाउट सीइंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड. पहले चरण कमल से दर्शन है. श्रीमती कुंती, बिकॉज ऑफ हर बीइंग द आंट ऑफ द लॉर्ड, डिड नॉट बिगिन टू सी द लॉर्ड फ्रॉम लोटस फीट. तो जो कुंती महारानी है, जो कि आंट है, बुआ है भगवान की, वो उन्होंने चरण कमलों को नहीं देखा है. क्यों? क्योंकि भगवान बहुत ऑकवर्ड फील करेंगे, क्योंकि वो वात्सल्य प्रेम में है, भगवान उनसे छोटे हैं भाव में. तो फिर कुंती महारानी उनके चरण कमलों की तरफ देखेंगी तो भगवान को लगेगा ये तो मेरी माता तुल्य माता ही है. तो कुंती महारानी सीधे फेस पे देखती हैं. And thus Kunti Devi, just to save a painful situation of the Lord, began to see just above the lotus feet, just थोड़ा सा ऊपर, waist of the Lord, कमर से ऊपर से देखती, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. कमल से कुंती महारानी ने स्तुति शुरू की, नमो पंकज नाभाय. और फिर चेहरे तक गई
और फिर चरण कमलों में गई, क्योंकि भक्त का तो स्थान चरण कमल ही है भगवान के। इन द राउंड एवरीथिंग देयर इज इन दिस ऑर्डर, यहाँ इन द राउंड एवरीथिंग देयर इज इन ऑर्डर, और इस प्रकार से सब कुछ ऑर्डर में है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं। अद्भुत ये श्लोका है, अद्भुत कुंती महारानी के प्रयास है, और सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान हमारे लिए प्रकट हुए हैं अलग अलग रूपों में। थैंक यू सो मच डियर वैष्णवास फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस सेशन। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।